Hello class 3rd students. So today we will read the chapter from your book Living English, and the chapter is chapter number 6, and the name of the chapter is Nehru's Little Friends. Okay, so you are kind if you care for others, especially those who cannot take care of themselves. So you are kind means you are very humble and you are very gentle if you take care of others. अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो और टेक केयर करते हो तो आप बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हो. ओके, स्पेशली दोज हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. और हमें उन लोगों की ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए जो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाते. ओके, दोज हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. Let us read an incident from Jawaharlal Nehru's life that shows how an act of kindness saved the lives of little creatures. So we have in the story we have to read an incident. हम जवाहरलाल नेहरू की लाइफ से एक इंसिडेंट पढ़ेंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें वो क्या शो कर रहे हैं. In that incident he is showing that an act of kindness, okay, an act of gentleness. उसमें वो शो कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक लिटिल क्रिएचर की लाइफ सेव करी. ओके, Jawaharlal Nehru was a freedom fighter and was chosen as the first Prime Minister of India. So students, as you already know that Jawaharlal Nehru is a freedom fighter. Freedom fighter means जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी. ओके, सो फ्रीडम फाइटर्स एट द टाइम आर देयर बिकॉज उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे. सो एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ देम जिन्हें फ्रीडम चाहिए थी, जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स से. ओके, एंड वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्हें इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. He was sent to jail many times during the freedom struggle. So at the time what the Britishers do, if they find out that anyone is struggling for freedom or anyone is fighting against the rules and regulations of Britishers, अगर Britishers के rules and regulations के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता था और freedom के लिए लड़ाई करता तो Britishers क्या करते थे? Britishers they sent that person to the jail. वो उन्हें जेल में डाल देते थे. सो जवाहरलाल नेहरू इज़ वन ऑफ देम हु सेंट टू जेल फॉर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, in jail he would spend his time writing and reading. So what he do in the jail, he just spend his time while writing and reading. वो अपने लिखने में और पढ़ने में अपना सारा टाइम स्पेंड करते थे जेल में. One afternoon as he sat reading, he felt something tickling his right foot. Then it climbed up his legs. When this happened for the third time, Nehruji peeped out from behind the newspaper he was reading. So what happened one afternoon, जब वो एक दोपहर वो बैठे हुए थे, as he was sitting and reading, वो जब बैठ के पढ़ रहे थे, so he felt something tickling his right foot. उन्हें क्या महसूस हुआ कि कुछ चीज़ उन्हें छू के गुजरी है. ओके, tickling means when something or someone just touch your body or quickly touch you. ओके, अगर कुछ छू के गुजरता है तो हमें टिकलिंग महसूस होती है. टिकलिंग मीन्स गुदगुदी. ओके, सो समथिंग इज टिकलिंग इन हिज राइट फुट. तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके राइट फुट पे कुछ छू के गुजरा है. तो देन इट क्लाइंब अप हिज लेग्स. ओके, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो चीज़ थी वो उनके लेग्स पे क्लाइंब करने लगी. ओके, चढ़ने लगी. When this happened for the third time, तो first and second time जवाहरलाल नेहरू ignored this thing. ओके, उन्होंने पहले इग्नोर करा, बट ये दोबारा जब थर्ड टाइम हुआ, so Nehruji peeped out from behind the newspaper he was reading. So what Nehruji does, he just peeped out from the behind the newspaper that he was reading. As you can see in the image, Nehruji is reading a newspaper and he just peeped. Peep means जब आप झांकते हो. ओके, सो उन्होंने न्यूज़पेपर के पीछे से झांका कि व्हाट इज़ दैट थिंग दैट इज़ टिकलिंग ऑन माई राइट फुट एंड क्लाइंबिंग अप ऑन माई लेग्स. सो ही फाउंड आउट एंड देयर इट वॉज अ स्क्विरल लुकिंग अप एट हिम. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन हर हिंड लेग्स एंड लुकिंग एट हिम क्यूरियसली. So what Nehruji found that there is a squirrel who is looking at Nehruji, and
He was just standing on her hind legs. Hind legs are the basically the back of your legs, जो कि पीछे के आपके पाँव होते हैं. As you can see, the squirrel is standing on her hind legs, okay, and he was looking at Nehruji curiously. After a few seconds, she scampered away. Okay, so after a few seconds, कुछ seconds के बाद, the squirrel scampered away. Scampered away means to run away fast, और वो तेजी से भाग गई वहाँ से. The squirrel returned the next day. Then she came every day. She would sit in Nehruji's lap unafraid. Okay, so what happened after that? The squirrel, as you can see, the squirrel returned the next day. Squirrel दोबारा अगले दिन वापस आई. And then she came every day, और वो हर दिन आती गई बार बार. ओके, एंड शी वुड सिट इन नेहरूजीज लैप अनअफ्रेड. तो वो हमेशा क्या करती थी, वो जो स्क्विरल थी, शी वुड सिट ऑन नेहरूजीज लैप. लैप यू नो, आपकी जो जब आप बैठते हो तो एक जिसे हम हिंदी में गोदी भी कहते हैं. ओके, जो आपके लेग से फॉर्म होता है ना, फ्लैट एरिया. ओके, दैट इज कॉल्ड लैप. सो नेहरू जी के लैप में वो हमेशा अनअफ्रेड. अनअफ्रेड मतलब जिसको किसी भी चीज़ का डर ना हो. ओके, सो स्क्विरल आराम से नेहरू जी के लैप में जाके बैठ जाती थी हमेशा. He enjoyed watching the squirrels run about with bits of food in their mouths. Sometimes a baby squirrel would fall off a tree. The mother would simply roll it into a ball and carry it back up. Okay, so he enjoyed. He is here Nehru ji. Okay, so Nehru ji enjoyed watching the squirrels. Okay, Nehru ji को बहुत पसंद आता था जब वो squirrels को देखते थे. And the squirrels, जो squirrels होती थी, वो अपने माउथ में कुछ bits of food means जो रोटी का है तो कुछ भी टुकड़ा होता है खाने का, वो लेके इधर उधर रन करती थी. ओके, इधर उधर भागती थी. तो उसे देखकर नेहरू जी बहुत ही खुश होते थे. समटाइम्स अ बेबी स्क्विरल वुड फॉल ऑफ अ ट्री. अब कभी क्या होता था, समटाइम्स द बेबी स्क्विरल्स जो होती थी वो ट्री से नीचे गिर जाती थी. द मदर वुड सिंपली रोल इट इनटू अ बॉल एंड कैरी इट बैक अप. सो द बेबी स्क्विरल्स हैव अ मदर. उनकी जो मदर थी वो क्या करती थी, वो सिंपली रोल करती थी, रोल करके नीचे आती थी और वो अपने बेबी को लेके वापस दोबारा ट्री में चढ़ जाती थी. ओके, वन डे नेहरू जी हर्ड लाउड वॉइसेस. ही सॉ अदर प्रिजनर्स. सो वन डे व्हाट हैपन, नेहरू जी हर्ड लाउड नॉइजेस. ओके, वॉइसेस. ओके, तो नेहरू जी को एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी. वॉइसेस मीन्स जो आप आवाज़ निकालते हो ना, दैट इज़ योर वॉइसेस. तो उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी. सो ही सॉ अदर प्रिजनर्स. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बाकी प्रिजनर्स को देखा. प्रिजनर्स आर द दैट पर्सन हु सेंट टू जेल. जिन्हें जेल में डाला जाता है, दैट आर कॉल्ड प्रिजनर्स. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स हैं. एंड दैट इज सराउंडिंग द ट्री. दे आर सो स्मॉल, समवन सेड. आर दे अलाइव, आस्क्ड अनदर. तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स ने जो एक ग्रुप बना रखा था. एंड दे आर सराउंडिंग द ट्री. तो वो उस ट्री जिसमें जो स्क्विरल्स रहती थी उसको घेर के सारे प्रिजनर्स खड़े हो रखे थे. ओके, एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक प्रिजनर्स ने कहा, दे आर सो स्मॉल. वो बहुत छोटे हैं. ओके, आर दे अलाइव. और दूसरे प्रिजनर ने पूछा, आर दे अलाइव मतलब वो जिंदा हैं. 3 baby squirrels had fallen off a tree. The mother will come to fetch them, Nehruji said to the others. So what Nehruji saw, that the 3 baby squirrels that are living on a tree, जो ट्री में रह रहे थे, वो नीचे गिर गए हैं. ठीक है, 3 बेबी स्क्विरल्स नीचे ट्री से गिर चुके हैं. द मदर विल कम टू फेच देम एंड नेहरूजी सेड टू द अदर प्रिजनर्स दैट, उनकी जो मदर आएगी, वो मदर जो है स्क्विरल्स की, वो आएंगी और इन्हें वापस ले जाएंगी. ओके, फेच देम मतलब आप जब किसी चीज़ को पकड़ के वापस उसकी प्लेस में रख देते हो. We should stay away from the baby squirrels for a while. However, by nightfall, no squirrels had come to pick up its children. The men were getting worried. So what happened next? तो नेहरू जी ने ये बोला कि we should stay away from the baby squirrels for a while. तो उन्होंने कहा कि हमें बेबी स्क्विरल से थोड़ा
दूर रहना चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट अगर आप स्क्विरल के पास आते हो तो वो भाग जाती है ना। तो वो उन्होंने कहा कि हमें स्क्विरल से दूर रहना चाहिए ताकि उनकी जो मदर है वो आके उन्हें ले जाए। ओके, However, by nightfall, no squirrels had come to pick up its children. तो but what happened next कि जब रात हो गई तब भी कोई भी स्क्विरल नहीं आई, कोई भी मदर स्क्विरल नहीं आई अपने जो बेबीज़ हैं उनको लेने के लिए। ओके, एंड द मेन वर गेटिंग वरीड, सो ऑल द प्रिजनर्स आर देयर, सो वो सब बहुत ही वरीड थे। वरीड मीन्स जब व्हेन यू आर वेरी जब आप किसी चीज़ को लेके चिंता होती है। ओके, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग और यू आर गेटिंग वेरी टेंस्ड। ओके, सो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा वरी हो गए कि व्हाट विल हैपन नाउ, कि जो 3 बेबी स्क्विरल्स हैं इन्हें वापस कौन ले जाएगा। ओके, Nehruji gently picked up the babies and put them in a dish. So what Nehruji does afterwards, he just put the 3 babies in a dish. उन्होंने वो 3 babies को gently पकड़ा और उन्हें एक dish means आपकी जो plates होती है ना, that are called dish, और उन्होंने उस dish में plates में उन्हें रख दिया। We will have to feed them or they will die, but they are too young to chew on leaves or other food. So what Nehru ji said that we will have to feed them. Okay, नेहरू जी ने कहा कि हमें इन्हें feed means हमें इन्हें कुछ खिलाना होगा। okay, अगर हम इन्हें नहीं खिलाएंगे तो that they will die, ये मर जाएंगे। but they are too young to chew on leaves or other food, but ये बहुत ही ज़्यादा young है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं कि ये किसी भी जो फूड है और किसी भी लीव्स हैं उसको च्यू नहीं कर पाएंगे। च्यू मतलब जब आप छोटे छोटे बाइट्स लेते हो ना, चबाते हो, ओके, अपने माउथ में, दैट इज़ द च्यूइंग पार्ट। ओके, सो ये अपना जो फूड है उसको च्यू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इन्हें कोई भी लीव्स या तो कोई भी अदर फूड नहीं दे सकते। ओके, some milk then, Ahmed another prisoner asked. Okay, so Ahmed is one of the prisoner और उसने क्या कहा some milk then, तो उसने एक आइडिया दिया नेहरू जी को कि क्यों ना हम इसे कुछ दूध पिला दें, कुछ मिल्क पिला दें। ओके, they cannot lap it up from a bowl, नेहरू जी said. तो नेहरू जी ने अहमद को ये कहा कि they cannot lap it up from bowl, कि अब जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं और वो बोल में अगर हम मिल्क रखेंगे तो वो वहाँ से नहीं पी पाएंगे। ओके, एज यू कैन सी नेहरू जी is here with the 3 little squirrels and they are in a dish. Okay, how about a bottle? Just then Nehru ji saw an ink dropper on a table. So next prisoner ने कहा, जो दूसरा prisoner था उसने क्या कहा, how about a bottle, कि क्यों ना हम इसे बॉटल से दूध पिलाएं। ओके, बट जस्ट देन नेहरू जी सॉ एन इंक ड्रॉपर ऑन अ टेबल, बट उसी समय नेहरू जी ने क्या देखा, नेहरू जी सॉ एन इंक ड्रॉपर। इंक ड्रॉपर इज बेसिकली एज यू कैन सी इन द इमेज, जहाँ से आप जैसे आपको दवाई मिलती है तो इंक आपकी जो आई साइट वीक के लिए जो मेडिसिन होती है ना, उसमें इंक ड्रॉपर होगा जिसमें ड्रॉप से आपकी जो चीज़ होती है अंदर की वो बाहर निकलती है। ओके, सो उन्होंने नेहरू जी ने इंक ड्रॉपर देखा जो कि टेबल पे रखा हुआ था। दैट कैन बी आर बॉटल, दे क्लीन द इंक ड्रॉपर एंड फिल्ड इट विद मिल्क। तो व्हाट नेहरू जी सेड दैट दिस इंक ड्रॉपर कैन बी आर बॉटल, ये जो इंक ड्रॉपर है हम इसे बॉटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड उन्होंने क्या करा, दे क्लीन द इंक ड्रॉपर, उन्होंने इंक ड्रॉपर को क्लीन करा और उन्होंने एंड फिल्ड इट विथ मिल्क, और उन्होंने इसमें मिल्क भर दिया। ओके, दे ट्राई टू स्क्वीज ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इनटू द माउथ्स ऑफ द बेबी स्क्विरल्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्राई करा कि जो ये इंक ड्रॉपर है उससे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो स्क्विरल्स हैं, बेबी स्क्विरल्स, उनको मिल्क पिला सके। ओके, हाउएवर द बेबी स्क्विरल्स कुड नॉट ओपन देयर माउथ टू ड्रिंक द मिल्क, बट व्हाट हैपन नेक्स्ट, जो बेबी स्क्विरल्स थे वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहे थे, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ टू ड्रिंक द मिल्क फ्रॉम एन इंक ड्रॉपर। वो इंक ड्रॉपर से जो दूध है वो पी नहीं पा रहे थे क्योंकि जो उनका माउथ है, उनका जो मुंह है वो खुल नहीं रहा था। ओके, then Ram Prasad, another prisoner, had an idea. He placed some cotton at the end of the dropper. The cotton balls soaked up the milk. So what the other prisoner, the name of the other prisoner is Ram Prasad. So Ram Prasad gave an idea that
वट इफ़ वी प्लेस सम कॉटन एट द एंड ऑफ द ड्रॉपर, उसने ये आइडिया दी कि अब अगर हम इंक ड्रॉपर के जो एंड है, एंड पार्ट है जहाँ से मिल्क आ रहा है, वहाँ से हम कुछ उसमें कॉटन प्लेस कर दें, और कॉटन अगर इस सारे मिल्क को सोक कर लें, सोक मीन्स जब आप जैसे आप रखते हो ना पानी में, कोई भी चीज़ रखते हो, अगर पानी में कॉटन रख रहे हो तो कॉटन क्या होता है, सारा पानी अपने अंदर खींच लेता है। ओके, सो उसने कहा कि अगर हम इंक ड्रॉपर के एंड में इफ़ वी प्लेस द कॉटन, तो कॉटन जो क्या करेगा, वो सारा मिल्क सोक कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। सो नेहरू जी गेव द सोक्ड बॉल ऑफ कॉटन टू द बेबी स्क्विरल्स। तो नेहरू जी ने क्या करा, ये जो सोक्ड बॉल थी कॉटन की, जिसमें बहुत सारा मिल्क अंदर था, उस सोक्ड बॉल को कॉटन की उन्होंने बेबी स्क्विरल्स को दिया, ताकि बेबी स्क्विरल्स क्या कर सकें, मिल्क पी सकें। ओके, द बेबी सक्ड अप ऑल द मिल्क। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, जो बेबी स्क्विरल्स थे उन्होंने सक्ड अप मीन्स पूरा जो उन्होंने जो मिल्क था कॉटन बॉल में वो सारा चूस लिया। ओके, नेहरू जी sat by the baby squirrels for many hours to make sure they were fine. He knew that his squirrel friend would be glad that her babies had been saved. सो नेहरू जी जो थे उन्होंने बहुत टाइम तक वो बेबी स्क्विरल्स के पास में बैठे रहे, और बहुत सारे आवर्स तक, बहुत ही घंटों तक वो बैठे रहे बेबी स्क्विरल्स के पास, एंड उन्होंने मेक श्योर करा, उन्होंने ये देखा कि वो सही से दूध पी रहे हैं और वो दैट दे वर फाइन। ओके, वो सही है, हेल्थी है। He knew that his squirrel friend would be glad that her babies had been saved. और उन्हें पता था जो उनकी स्क्विरल फ्रेंड थी वो बहुत ही खुश होती जब उसे पता चलता दैट कि उसके जो बेबीज़ हैं वो बचा लिए गए, दैट हैड बीन सेव्ड। As you can see, there is a baby squirrel and she was drinking milk with the cotton ball that is soaked up with milk. Okay, जो मिल्क से पूरी soaked है, मतलब इसके अंदर पूरा मिल्क भरा हुआ है, और जो बेबी स्क्विरल है वो इसे सक कर रही है, वो इसे पी रही है। ओके, थैंक यू।